So yesterday I told you what is the meaning of uniform resource locator. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is it? Ma'am, it tell us about the address of the email. Address of any email address or any website address. This is called uniform resource locator. कोई भी वेबसाइट का नेम जो होता है www.amazon.com या earlydeopillar.com, these all address of website and address of email also called URL. Okay. ये भी पढ़ लिया था हमने. It is divided into 3 parts. @ symbol is must. Before @ username is there and after @ domain name. How to create मैम आपने also. कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल प्रोग्राम का बताया था, इनबॉक्स कंपोज वाला, और ये दो बताया था आपने. हाँ, अच्छा कंपोनेंट्स चल रहे थे. ओके मैम बोलो. मैम ये पेज उल्टा क्यों है? ये मैंने किसी स्टूडेंट से ही मांगा था PDF, तो जैसे उन्होंने भेजा वैसे है. मैम प्रॉपर नहीं भेजा उसने. कोई बात नहीं. अपन सीधा कर लेते. जो पेज देखना है उसको रोटेट करके देख लेंगे. यस मैम. इनबॉक्स हम क्या बताया था? व्हाट इज इनबॉक्स? मैम इनबॉक्स इज अ प्लेस वेयर और ईमेल्स कम. रिसीव कर रहे हैं. वो सारे मैसेजेस के बारे में इनबॉक्स बताते. यस, whatever message we received. अकाउंट पता है, भी बताया था. Whatever message we received from someone, these all messages are stored in a folder which is called inbox. So inbox, when you click on inbox, you can see all the messages. Then whatever message you want to read, you have to double click on it. And what is compose? To send any message to anyone. Ma'am, where ma'am we send the message to any other. Yes. In the email. Yes, if you want to mail someone, want to send message to someone, click on the compose. Compose. And 2 box you have to write the email address of the person to whom you are sending, and then write the message. If you want to attach a file, you can attach. Okay. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. Sent folder में क्या होता है? वो sent में Ma'am, you send the compose messaging using this. हमने जिसको मैसेज कंपोज किया है, जिसको हमने मैसेज किया है ना, कंपोज किया है, उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है. yes, तो all the sent message by us to someone, all the detail you can see. If I click on sent yesterday, what we have done, that all the signature steps बताए थे क्या मैंने आपकी क्लास में? No, ma'am. How to add digital signature. चलो वो देखते No, हैं. ma'am. When you generally some professional letters or if you apply for any leave, we are writing the application and at the end we write our signature, है ना. कई जगह ऐसा होता है हमें सिग्नेचर करने होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये टाइपिंग के थ्रू हम भेजते हैं मैसेज. तो here you can add your digital signature. आप या तो अपने सिग्नेचर को कॉपी में करके उसकी पिक्चर लेके रखें, जैसे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ले रखी है. यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने नहीं, डाउनलोड फोल्डर में है. या तो आप अपना सिग्नेचर की फोटो ले ले या पेंट में भी कर सकते हैं. ये मैंने
पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी पिक ली है। इसको कैसे ऐड करेंगे वो हम देखते हैं कि आपके हर ईमेल के नीचे आपका सिग्नेचर अपने आप ऐड हो जाए। फॉर एडिंग योर सिग्नेचर एट द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट साइड में जो है आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. So click on the Yes, setting. ma'am. When we click on the setting, see all setting option is visible here. Click on see all setting. Yes, ma'am. ये सारी सेटिंग है, आप इस यहाँ की थीम वगैरह बैकग्राउंड ये सब सेट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, फिलहाल सिग्नेचर ऐड करना है। तो स्क्रॉल डाउन एंड सी वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन। ये देखो, आपको अपनी डीपी लगानी है। माई पिक्चर में आप जाके डीपी लगा सकते हैं अपनी ईमेल अकाउंट की। ये सिग्नेचर ऑप्शन दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there is no signature. Now Yes, I ma'am. want to add my Yes, ma'am. signature. So click on the Ma'am, it is written to create now. click on the create new signature because now I have no signature. So then I click on the create new button. Wait a minute. When you click on create new button, it is asking you your signature name. मुझे मेरा सिग्नेचर करना है, तो what I write my name प्रियंका and click on create अब button. ये पोर्टल पे डालोगे क्या? हाँ, डाल दूंगी। पोर्टल पे डाल दूंगी, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो देख लेना। ये जो मैंने अभी ऐड हुआ। ये जो नेम ऐड किया है मैंने, ये फॉन्ट वगैरह चेंज करने के भी ऑप्शंस हैं। यहाँ यूज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। वैसे आपका दिखेगा तो सिग्नेचर, जो आप इमेज यहाँ पे देखो, ऐड इंसर्ट इमेज ऑप्शन दिख रहा है। Yes, ma'am. क्लिक ऑन द Yes, Yes, ma'am. ma'am. insert image option. Now it is asking you where is your image. आपकी गूगल ड्राइव में है या कहाँ है। मुझे अपलोड करनी है इमेज। अपलोड पे क्लिक करूंगी। सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। मेरे लैपटॉप में वो स्टोर है। मैम, यहाँ पे आप डाउनलोड में जाके वो फाइल लेना सेलेक्ट। हाँ, हमें अपलोड करनी है। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे पिक्चर्स अपलोड करते हैं ना, वैसे यहाँ भी पिक्चर हमें Yes. अपलोड करनी है। तो मैं सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करूंगी। मेरी वो इमेज कहाँ थी, डाउनलोड फोल्डर में थी। क्लिक ऑन द मैम, डाउनलोड डाउनलोड। फोल्डर, दिस वाज द इमेज। क्लिक ऑन द इमेज एंड प्रेस ओपन बटन, then it will be the uploading process will be visible to you. Yes. अब ये अपलोड हो गई है, दिख रहा है ये। Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखें ये अच्छे से अपलोड होती है कि नहीं। मैम ये प्रॉपर नहीं दिख रही, बहुत छोटी छोटी दिख रही। प्रॉपर नहीं दिख रही, था अपन दूसरी इमेज ले लेते हैं। मैम, हम मैं सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या ना, मतलब कितना पार्ट चाहिए इस इमेज? वो सिग्नेचर तो पूरा ही चाहिएगा। ये क्या मैंने क्रॉप कर दिया था ना, तो शायद ज्यादा बड़ा। अपन पेंट में नया सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। पेंट मैम। में आप चाहो तो पिक्चर ले सकते हो, या पेंट में आप पेंसिल से लिख पाए तो सिग्नेचर यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है लिखना। मैम, माउस पॉइंटर से लिखना तो बहुत डिफिकल्ट। ये तो देखो मैंने लैपटॉप से फिंगर से लिखा है। नाउ क्रॉप दिस, and save it. I am saving it at desktop. The file name I will give signature. Click on save button. Now again go to the window.
इसको अपन डिलीट, ये देखो डिलीट सिग्नेचर ऑप्शन भी है यहाँ। जो मैंने अपलोड किया था उसको डिलीट कर देती हूँ, वापस से क्रिएट न्यू पे क्लिक करती हूँ, क्रिएट। नाउ अगेन अपलोड द इमेज, दिस लिंक पे क्लिक हो गया, insert image option is there, click on the upload button, select a file from your device, click on desktop, here I saved as signature, select the file, press open button. दिख रही है? Now it is visible. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So after adding your signature, whatever modification you do in the setting में जाके हम जो भी changes करते हैं ना, तो सबसे लास्ट में जाओ स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ सेव चेंजेस करना जरूरी है। सेव चेंजेस नहीं करोगे तो जो आपने सिग्नेचर ऐड किया है वो सेव नहीं होगा। तो आएगा ही आफ्टर नहीं। एडिंग सिग्नेचर यू क्लिक ऑन द सेव चेंजेस एट द लास्ट। और एक चीज और करना हम भूल गए, अभी सिग्नेचर ऐड नहीं होगा। अगेन गो टू द सेटिंग, सी ऑल सेटिंग, ये सिग्नेचर तो ऐड है, लेकिन अब ये नीचे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि फॉर न्यू ईमेल यूज आपको ये सिग्नेचर कहाँ ऐड करना है। कोई भी न्यू कंपोज करते हैं फाइल, उसके नीचे क्या ये सिग्नेचर चाहिए? अभी नो सिग्नेचर ऐड है, मुझे चाहिए तो मैं ये प्रियंका नाम दिया हुआ है, ये मैं सेलेक्ट करूंगी। ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई मेल को रिप्लाई करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो यू नीड सिग्नेचर। इफ यू नीड देन क्लिक ऑन द सिग्नेचर नेम, अदरवाइज नो सिग्नेचर। तो मुझे रिप्लाई और फॉरवर्ड करते समय नहीं चाहिए तो नो सिग्नेचर क्लिक कर देती हूँ, और जो भी न्यू मेल क्रिएट करूंगी उसमें चाहिए तो मैं उस समय का मैंने ये चूज कर दिया। तो यहाँ पे चूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। नाउ गो टू अगेन एंड एंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस। Now you see whenever I compose a email. मैम बोलो। मैम ये आपने सेव चेंजेस ऑप्शन कहाँ से करा? सेव चेंजेस वहीं पे सेटिंग में स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, सबसे एंड में आएगा सेव चेंजेस। ओके। अब मैं कंपोज पे क्लिक करती हूँ तो देखो मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। अब किसी को भी मैसेज करते हैं, सब्जेक्ट है एडिंग सिग्नेचर टू मेल अकाउंट। यहाँ पे जो भी मैसेज मैं लिखूंगी, कुछ भी टाइप करते रहो, ये सिग्नेचर नीचे, सिग्नेचर सबसे लास्ट में आएगा। आप जो भी टाइप करते रहेंगे ये नीचे शिफ्ट होता जाएगा। आफ्टर योर मैसेज एट द लास्ट सिग्नेचर विल बी डिस्प्ले। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सेंड बटन, मेल हैव सेंड। नाउ द सेंडेड मेल वेयर आई कैन सी इन द सेंड फोल्डर। इन सेंड सेंड फोल्डर में देखो अभी अभी मैंने ये मेल किया है, ये देखो जो भी मैसेज है सबसे लास्ट में मेरा सिग्नेचर अपने आप ऐड हो रहा है। अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो ये सिग्नेचर ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने चूज नहीं किया रिप्लाई और फॉरवर्ड के टाइम। अगर मैं फॉरवर्ड करती हूँ सेम मैसेज तो भी सिग्नेचर ऐड नहीं होगा, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड नो सिग्नेचर दैट टाइम। यू रिमेम्बर मैंने क्या चूज? यस मैम। ये तो ओरिजिनल मैसेज है, ये तो मेरा ही मैसेज है इसलिए ये आ रहा है। मैं किसी और का मैसेज, अगर मैं किसी और का मैसेज फॉरवर्ड करूंगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा। तो ये सिग्नेचर नीचे ऐड नहीं होगा, बिकॉज आई हैव चोजन not to add signature when I forward and reply to a message. Okay, only signature will be added when I compose a new message.
So it is clear how to add signature. When you will send Yes, something ma'am. to the account. Yes. Again, I am telling you, go to the setting from the top right corner, click on see all setting option, then scroll down to see where is signature option. मैम Here is इस signature. थीम से क्या होगा? थीम से कलर वगैरह जो बैकग्राउंड में ईमेल में वैसे बैकग्राउंड बैकग्राउंड में चेंज कुछ हो आता है। जाएगा ना मैम? हाँ, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए है। आपका फोन नंबर ऐड जो करना बैकग्राउंड है। थे वो ईमेल, ये बहुत सारे सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। लैंग्वेज चूज करना, डीपी लगाना, शॉर्टकट कीज ऐड करना। इसमें से फिलहाल आपके कोर्स में ओनली सिग्नेचर ऐड करना है। तो कोई भी चीज आप कुछ भी चेंजेस करते हैं सेटिंग में, तो लास्ट में आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट Save स्क्रॉल change. डाउन करो और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। मैम क्लिक करना होगा सेव चेंज. Save change. Yes. So this is about setting. मैम हम्म मैम आपने कहा था कि है ना, आप आज बताओ कि क्या ना कैसे अपन है ना किसी भी ईमेल आईडी को डिसएक्टिव कर सकते हैं। हाँ, डिसएक्टिव आज अपन ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब पाइथन स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले कुछ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके तब करेंगे। ये चैप्टर आज पूरा, क्योंकि मैं Okay, क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी इसके, तो यू मस्ट नो अबाउट द चैप्टर। मैम आपने कर तो दिया इसके क्वेश्चन आंसर सेंड? नहीं, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, अभी चैप्टर के क्वेश्चन बाकी है। अच्छा, वो okay. चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं थे। अब आपको अटैचमेंट का मैंने बताया था, हाउ टू डाउनलोड अटैचमेंट, ये भी आपके कोर्स में है। बताया था क्या मैंने? कल की क्लास में नहीं बताया था ना? मैम क्या? हाउ टू डाउनलोड अटैचमेंट। किसी ने आपको फाइल अटैच करके सेंड किया है तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे? मैम हाँ आपने बता दिया था। बताया था? दिया था मैम वी नो. No, हाँ। ma'am. मैम आपने बता दिया। मैम चलो मैम देख बताया था। एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे मेरे इनबॉक्स में मैं देखती हूँ ऐसा कौन से पर्सन है जिसने मुझे अटैचमेंट सेंड किया है, या मेरे खुद के सेंट फोल्डर में मैं देख लेती हूँ। मल्टीपल, जैसे कि ये है मेल, इसमें क्लास 9th के नोट्स हैं और इसमें 2 फाइल्स हैं। कैसे डाउनलोड करूंगी मैं, बताओ? ये अटैचमेंट मुझे अपने डिवाइस पे मैम डाउनलोड डाउनलोड. वो डाउनलोड का मैम ऑप्शन आ रहा डाउनलोड के है। ऑप्शन पे क्लिक करके. मैम हाँ। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके. है ना जो नीचे की तरफ है वो वाले उसको हाँ, क्लिक कर देंगे very डाउनलोड। good। हर फाइल, ये दोनों अटैचमेंट पर एक डाउनलोड का डाउन एरो का ऑप्शन डाउनलोड का होता है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगी तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैम ये डाउनलोड के पास कौन सा ऑप्शन है? हम डाउनलोड इसमें आ ये जाएंगे। डाउनलोड के पास है कि ये आपको डिवाइस पे डाउनलोड नहीं करना है, आपके गूगल ड्राइव में सेव करना है, ड्राइव में ऐड करना है ना? तो ड्राइव पे सेव करना है तो इस पे क्लिक करो, में भी हो और सकता है ना ये। हाँ, और डिवाइस पे सेव करना है तो इस पे क्लिक। अब मुझे दोनों फाइल एक साथ डाउनलोड करनी है, ऐसे इंडिविजुअली नहीं। जैसे यहाँ 10 फाइल भेजी होती किसी ने, तो मैं एक एक करके तो मैम डाउनलोड करूँ। वो 2 अटैचमेंट लिखा हुआ है ना, उसके आगे आगे एक डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। मैम ये उसमें 2 जितनी भी चीजें होंगी अटैचमेंट के देखो attachment यहाँ लिखा पे, हाँ, ये डाउनलोड ऑल अटैचमेंट का ऑप्शन यहाँ आता है, दिख रहा है? यस मैम। तो आपको कोई Yes, ma'am. मल्टीपल फाइल भेजता है ना, जैसे 10 12 20 किसी ने अटैचमेंट भेज दिए, तो एक एक को करने से बहुत टीडियस जॉब हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मैम बहुत दैट टाइम क्लिक, लगेगा। तो क्लिक ऑन डाउनलोड ऑल अटैचमेंट। जब डाउनलोड And ऑल where? दिस हियर राइट साइड, 2 मैम 2 अटैचमेंट अटैचमेंट लिखा हुआ है राइट उसके साइड। आगे। Yes, ma'am.
अब ये यस मैम जब आप मल्टीपल अटैचमेंट को एक साथ डाउनलोड करते हैं तो इट विल क्रिएट अ जिप फाइल। ये देखिए जिप फाइल क्रिएट कर दी इसने। ये अटैचमेंट जो हमने डाउनलोड किया वो हमें कहाँ दिखेगा? हमारे कंप्यूटर में। डाउनलोड आप दिस Without- इफ यू हैविंग मैम माय पीसी पे मैम डाउनलोड के ऑप्शन पे हम्म। होगा, यस डाउनलोडर पे। माई कंप्यूटर और दिस पीसी व्हाट इज ऑप्शन यू हैव, उसके डाउनलोड फोल्डर, जो डाउनलोड फोल्डर है यहाँ पे, उसमें आप देखेंगे आज की डेट टुडेज लिखा हुआ आएगा। ये लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे और टुडे। टुडे में आपने अभी अभी जस्ट मैम डाउनलोड्स में होगा मैम। हाँ डाउनलोड, यू कैन फाइंड द अटैचमेंट इन द डाउनलोड फोल्डर। तो ये देखो ये जो फाइल है जिप फाइल बनी हुई है। whenever we download multiple attachment together then it will create a zip file, zip zip file। उस zip फाइल को आप जब डबल क्लिक करेंगे तब ये एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी जो अलग अलग फाइल है वो दिखाई देगी। यहाँ पे 2 ही थी, अगर 10 फाइल होती तो 10 दिखाई देती। अब यहाँ से इंडिविजुअली फाइल आप देख सकते हैं अपनी। तो जिस फाइल पे मैं क्लिक करूंगी वो देखिए। तो whenever you download multiple attachment together then you can it will prepare a zip file। और zip फाइल पर क्लिक करने पर ही आपको सारी फाइल इंडिविजुअली नजर आएगी। तो ये zip फाइल्स की जो भी फाइल थी ये मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गई। तो in your book you see opening an attachment, open your account and click on inbox that you know। पहले इनबॉक्स पे जाएंगे, फिर डाउनलोड आइकन आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड फाइल को आपको एक सिंगल फाइल को करना है, डाउनलोड आइकन पे क्लिक करें। मल्टीपल को करना है और जो भी डाउनलोड है वो दिस पीसी। इफ यू हैव विंडो 10 यू विल फाइंड दिस पीसी ऑप्शन, और अगर विंडो 7 तक है तो शायद माई कंप्यूटर आएगा आपके कम। तो दिस पीसी या माई कंप्यूटर में आपको डाउनलोड फोल्डर में दिखाई देगा। फाइल कौन सी होगी? जिप फाइल लिखा हुआ है ना, डबल क्लिक द जिप। अगर हमने मल्टीपल फाइल को डाउनलोड किया तो जिप फाइल बनेगी एंड देन डबल क्लिक ऑन द जिप फाइल टू सी द अटैचमेंट। यही ऑप्शंस आपके जो भी मैंने बताया वो बुक में लिखे हुए हैं। तो इफ यू डू प्रैक्टिकली ना तो आपको ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू डू ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली आपको रटने की जरूरत है। मैम आपको इस ईमेल के बारे में तो सबको पता ही होता है, हाँ जैसे आप लोग तो भेजते मैम ही हम चाहे तो मन से भी लिख सकते हाँ आपको सबको हैं। मैम पता है। एक्टिविटी भेजते ही हैं। एक्टिविटी भी अपने आप भेजते हो तो फिर पता ही होगा आपको। अगर पेरेंट्स भेजते हैं तो अलग बात है। अटैचमेंट डाउनलोड मैम हम तो अपना भेजते हैं। यस मैम मैं भी। गुड, आना चाहिए। अब ये पेंडेमिक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल यही काम में आए। तो अब जिसको नहीं आता था सबको आ गया है और इट इज वेरी नेसेसरी नाउअडेज। यस मैम। All the things are converted into digitally, मनी ट्रांसफर, परचेजिंग करने जाओ तो भी आपके पेटीएम वगैरह मैम Google ऑल Pay, थिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू डिजिटल। यस एंड इट इज गुड कि आपको पे करते हैं आप शॉप पे। अभी कोरोना के टाइम में तो आप रुपीज एक्सचेंज करते हैं तो आपके बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आप गूगल पे या पेटीएम से करेंगे तो आपका फोन पे ये सब यूज में लेंगे तो आपको कोई कहीं हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इट इज गुड टू बी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। रिप्लाई करना आता है, रिप्लाई और रिप्लाई ऑल भी ऑप्शन होता है एक, ये पता है? वैसे आपके कोर्स में नहीं है, ओनली रिप्लाई करना है। कई बार क्या होता है बता देती हूँ, कोर्स में तो नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए। वैसे चैप्टर का हो गया, एक लास्ट है पहले वो देख लेते। साइन आउट, इफ यू आर using your email account, if you are opening your email account at a public place
जहाँ पे और भी लोग उस कंप्यूटर पर बैठते हैं। तो आप अपना ईमेल अकाउंट यूज करने के बाद उसको साइन आउट जरूर करना साइन चाहिए। आउट कर दो। साइन आउट Yes, को ma'am. लॉग आउट भी कहा जाता है। कई कई मेल में साइन आउट ऑप्शन होता है, कई जगह लॉग आउट होता है। तो इट इज नेसेसरी टू साइन आउट फ्रॉम योर साइट, बिकॉज इफ यू आर नॉट साइन आउट योर ईमेल, तो आपके बाद जो भी उस कंप्यूटर पर बैठेगा, अगर आपने जीमेल पे अकाउंट, जीमेल को खोलते ही आपका अकाउंट खुला मिलेगा, तो आपके कोई भी प्राइवेट मैसेज, कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा वो कोई भी पढ़ सकता है। आपके मेल से कोई दूसरे को मैसेज, फेक मैसेज भी कर सकता है आपके नाम से। तो यू हैव टू साइन आउट। अगर आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल लैपटॉप है, जैसे मेरा पर्सनल है, तो मैं जीमेल ओपन करते ही मेरा अकाउंट ओपन रहता है, बिकॉज ओनली आई यूजिंग माय कंप्यूटर। कोई और मेरा लैपटॉप यूज नहीं करता है, तो मुझे साइन आउट की जरूरत नहीं है। बट इफ आई ओपन माय जीमेल अकाउंट इन द स्कूल, then I must sign out it, because if I not sign out, someone else can access my Gmail account. So how to sign out it? For the security purpose, you have to sign out. So at the this window top right corner, you ये मेरी डीपी दिखाई दे रही है। अगर डीपी आप नहीं लगाओगे Yes, तो ma'am. आपका फर्स्ट अल्फाबेट दिखाई देगा, जैसे मेरे पी दिखाई देगा, पी या पी आर लिखा हुआ होगा। और डीपी लिखा लगाओगे तो डीपी Yes, ma'am. है ना। तो क्लिक ऑन दिस डीपी। सबसे लास्ट में साइन आउट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिक ऑन द साइन आउट। जब आप साइन आउट करेंगे तो आप उस अकाउंट से बाहर आ जाएंगे। अब इस कंप्यूटर पे कोई और बैठेगा तो वो मेरा अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। और आजकल सिक्योरिटी के लिए मोबाइल पे ओटीपी भी आता है। ओटीपी या Yes, मोबाइल पे ma'am. पूछा जाता है कि आपका अकाउंट किसी ने ओपन, Yes. कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आप ही है, यस और नो में आपको जवाब देना होता है। तो देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी टेक्निक्स आल्सो। साइन इन अगेन, मुझे इसी पे Yes, साइन ma'am. इन करना है तो मैं वापस साइन इन अगेन पे कर सकती हूँ। पासवर्ड वापस पासवर्ड देना होगा। अब ये अकाउंट वही ओपन कर सकता है जिसको मेरा पासवर्ड पता है। सो नेवर शेयर योर पासवर्ड टू एनीवन। दो चीजें याद रखनी है आपको, पासवर्ड अपना ईमेल अकाउंट बताना है लेकिन पासवर्ड नहीं बताना है। और दूसरा, जब भी पब्लिक प्लेस पे आप या ऐसा कंप्यूटर पे आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं जहाँ कहीं कुछ और लोग भी बैठते हैं, तो आपको साइन आउट जरूर करना है। तो साइन आउट हमने पढ़ लिया है, एडिंग सिग्नेचर पढ़ लिया है, रिप्लाई और फॉरवर्ड में डिफरेंस बताया था ना मैंने। Yes, ma'am. रिप्लाई मीन्स टू गिव आंसर टू द यूजर, जिसने आपको मैसेज भेजा है। करके दिखाया था क्या मैंने? No, ma'am. ये आपने स्कूल में समझाया था ये वाला टॉपिक। ओके ओके। अब देखो, अब मैंने साइन इन किया ना, तो ये वेरीफाई कर रहा है कि क्या ये मैं ही हूँ या कोई और है। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, एक सेकेंड। मैम ये आशा आईफोन हमारी क्लास में नहीं है। मैम ये लक्ष्यता है। आईफोन लिखना जरूरी था। मोबाइल मुझे मिला नहीं, तब ये पासवर्ड पूछ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, ma'am. ओके। हाँ, अब मुझे जैसे किसी को रिप्लाई का देख लेते हैं।
ये मैसेज मैं नहीं भेजा है अपने ही दूसरे एड्रेस पे। अगर मैं रिप्लाई करूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे किसी भी स्टूडेंट को, नोट्स वाला देख लेते हैं। ये नोट्स मैंने किसी स्टूडेंट को सेंड की, तो द स्टूडेंट विल डाउनलोड द नोट्स एंड देन इफ यू वांट टू गिव रिप्लाई टू मी, तो रिप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टू बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये स्कूल का मेल है, ये स्कूल की वेबसाइट, स्कूल के मेल से मुझे ये अटैचमेंट मिले हैं, तो मुझे स्कूल को थैंक यू बोले, जिसने भी पर्सन ने आपको भेजा उसको आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक्स फॉर सेंडिंग। whatever reply you want to give in the two box, you don't need to write anything, क्योंकि आप रिप्लाई किसको करेंगे, जिसने मेल भेजा उसी को रिप्लाई करेंगे। तो ये टू बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप मेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा, आपको मैसेज टाइप करना है, सेंड करना है। ओके, और अगर आपको फॉरवर्ड करना है, रिप्लाई नहीं करना है, डिलीट कर देते हैं। सेम नोट्स मैंने नोट्स लिए, ये नोट्स मुझे दूसरे स्टूडेंट, आपको मैंने नोट्स भेजे, आपको सेम नोट्स एक ही क्लास में पढ़ते हो अपने क्लासमेट को भेजना है, तो आप फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करते समय आपको टू बॉक्स में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको आप ये सेम टू सेम नोट्स भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उस पर्सन का ईमेल एड्रेस रखिए, टू whom you want to send the same notes. So if when you replying the message, no need to write in two box, because you are replying to the person to whom you received message. जिसने मैसेज भेजा उसी को रिप्लाई करना है, तो टू बॉक्स में अपने आप उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, then in the two box write the email address of the person to whom you want to forward the same message. Like in the WhatsApp also, you are forwarding the same images, same jokes to one person to another. करते हो ना? Yes, ma'am. Forward means to send the same message what you received to someone else. This is called forward. And reply means to give acknowledgement to the person to whom you receive the message. उसी जिससे आपने रिसीव किया उसी को आपको कुछ जवाब देना है, तो उसको बोलते हैं रिप्लाई। Ma'am, through email we can create group. ईमेल में ग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो प्रोफेशनल 1-to-1 मैसेज करते हैं। अब इसमें क्या रह गया, सब हो गया है। इसके आंसर बताओ, MCQs। @of. मैम फर्स्ट का तो आंसर है @of, और सेकंड का आई थिंक सर्वर नेम, Ma'am, domain. Ma'am, domain. डोमेन नेम, मैम डोमेन नेम। यस, यूजर नेम जो होता है उसको हम लॉगिन नेम भी बोलते हैं, जैसे कि साइन आउट, यूजर नेम को, जैसे some website is asking you the username, some can ask login name, ऐसे ही साइन आउट को लॉग आउट कहते हैं, साइन लॉगिन इन। नेम। हाँ, तो यूजरनेम कैन बी टेल login name. You can Ma'am, also third का send, attachment. yes, you can send a file as an attachment with the email. If you want to send any file, you have to click on the Attachment. attachment का जो आइकन होता है वो किस शेप का होता है, उसको शेप को क्या बोलते हैं? पेपर पिन। मैम उसके अंदर एक ट्राइंगल होता है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल होता है जो मैम बीच में से कट होता है, मैम उधर एक प्लस बना हुआ होता है। नहीं, वो पेपर पिन जो होती है ना, पेपर को टाई पेपर करने पिन के जैसा लिए होता है वो, पेपर पिन के शेप का होता है, उस शेप को बोलते हैं पेपर पिन।
the most important advantage of Ma'am, fill in the email is blanks. Ma'am, we can Ma'am, send it is fast. cost effective and fast. very good. It is cost effective and fast. फास्ट तो पता है ये क्यों मिली सेकेंड में पहुंच जाता है. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन इन द मोबाइल, any number of message you can send without any extra cost. To send an email you need an Email address. and the you need a Sender email address. and the email address of the receiver and an email program. स्टार्टिंग में क्या होगा? एक ईमेल प्रोग्राम, मतलब जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, एनी ईमेल प्रोग्राम होना चाहिए और उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसको आप सेंड कर रहे हैं. ये मैं आपको सेंड करूंगी पीडीएफ में आंसर्स. डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू Ma'am, Ma'am, टाइप. ये ma'am, Ma'am, है ना compose. Yes, compose option is used to type a message in the email. URL stand for ma'am, uniform, Resource Locator. uniform. Uniform Yes, ma'am. resource locator. yes, uniform resource locator. Email address. Good. ये देखो, ये व्हाट इज ईमेल एड्रेस, मैं भेज चुकी हूँ. ये भी मैं भेज चुकी हूँ. ये अब दोबारा नहीं करूंगी, मतलब ये हम कर चुके हैं. मैम, जो भेज चुके हो वो तो चलेगा, बाकी आप भेज देना जो नहीं भेज हाँ, बाकी भेज तो वो हम कर लेंगे. ठीक है. So today I will send the question Ma'am, answer. ma'am, ये second